Hello students, today in motivational chemistry means the chemistry between our mind and our body. Today we will discuss how to handle the question paper in examination hall. Now question arises, what is an examination? Examination is a process being used since ancient time to assess the skill, ability, knowledge, aptitude or standing of a student. For overall growth of a student, exams plays an important role. Overall growth means students learn how to utilize the time in organized way. If you are organized, the productivity level will be high. For an active and adaptable mind, exams plays an important role. The process of examination gives meaning to our lives. What is question paper? Question paper is a set of questions is designed to measure creating power, analyzing power and applying and ability to apply acquired knowledge in different way. Now let us see how a CBSE paper is designed for science stream. CBSE question paper designed for 11th and 12th. This is for science stream. Remembering and understanding. Marks distribution is 28. इन रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आपने कॉन्सेप्ट को लर्न किया है, ठीक से अंडरस्टैंड करके किया है, ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम योर सिलेबस. अप्लाइंग नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन, इसके लिए वेटेज है 21 मार्क्स. और एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग फॉर दिस क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, इसके लिए मार्क्स हैं 21. CBSE क्वेश्चन पेपर for science stream, mainly for physics and chemistry, question paper is divided into 5 sections. In section A there are 16 questions and each question is of 1 mark, and in 16 questions 4 questions are of type assertion and reason questions. In section B there are 5 questions of 2 marks. In section C there are 7 questions of 3 marks, and in section D there are 2 questions of 4 marks. And in this section case study type questions are there. In these questions पहले एक लैंग्वेज फॉर्म के अंदर कोई सिचुएशन, कोई रिएक्शन या इस टाइप का कोई केस गिवन होता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. एंड इन सेक्शन ई देयर आर 3 questions of 5 marks and these are long questions. Now you are ready for exam. Reach at examination center before time, at least half an hour before. While for leaving examination center, do check first roll number. Your geometry box should be transparent. तो pouch type transparent geometry box आपको लेना है. वाटर बोतल आप ले सकते हैं, वाटर बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. क्लिप बोर्ड आपको लेना है, क्लिप बोर्ड भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ले ली. ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर 2-3 पेन्स होने चाहिए. एक खराब हो जाता है तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं. इरेजर, स्केल, ये सब चीजों का आप ध्यान करेंगे. और घर से आप निकल रहे हैं, कुछ खाकर निकलेंगे. While leaving for examination center, do check roll number, geometry box, transparent pouch type, clipboard and water bottle. Now, before entering in examination hall, do check no digital watch, no mobile. डोंट कैरी एनी अनफेयर मीन्स. चेक योर पॉकेट्स. कई बार गलती आप किसी पेज पे फार्मूले वगैरह लिख लेते हैं, पॉकेट में गलती से रह गया या ज्योमेट्री बॉक्स में गलती से रह गया, तो आप एंटर करने से पहले अपनी पॉकेट्स चेक कर लीजिए. बिफोर एंटरिंग इन एग्जामिनेशन हॉल डू चेक नो डिजिटल वॉच, नो मोबाइल, डोंट कैरी एनी अनफेयर मीन्स. एंटर द एग्जामिनेशन हॉल with sound body, sound mind, positive energy, full confidence, smiling face and take your seat. In few minutes question paper will be in front of you. Listen invigilators instructions carefully. जो 15 minutes reading time मिलेगा उसको properly utilize करिए. क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, उनको केयरफुली रीड करिए. क्वेश्चन पेपर के अंदर सारे पेजेस चेक कर लीजिए. जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रिंटेड हैं, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है. क्वेश्चन को रीड करेंगे या तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 33 और वाइस वर्सा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है. पर अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्क्स क्वेश्चंस हैं
और जो भी 5 मार्क क्वेश्चन होगा वो एक ही यूनिट से होगा। अगर वो यूनिट आपकी वीक है तो आपको स्ट्रेस में आ जाएंगे कि ये तो क्वेश्चन गया। कि क्वेश्चन पेपर पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन पेपर रीड करते हुए कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, डोंट स्टक देयर, डोंट वेस्ट योर टाइम, मूव फॉरवर्ड। और जब आपको आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट के ऊपर अपना रोल नंबर प्रॉपरली लिखिए। और जो क्वेश्चन पेपर का सेट है, 3 सेट्स क्वेश्चन पेपर्स के होते हैं, तो जो भी आपको सेट मिला है उसके लिए एक कोड गिवन होता है, वो कोड भी आपको आंसर शीट पे फिल करना है। ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट के भी टोटल नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लीजिए, उनमें से कोई कम तो नहीं है। Don't tear any page from the answer sheet, otherwise your answer sheet will be considered invalid. आंसर शीट का कोई भी पेज आपको खाली नहीं छोड़ना है। और रफ वर्क के लिए कोई भी एक पेज आप यूज नहीं करेंगे, मार्जिन रखेंगे। जो भी क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे हैं, जो मार्जिन है उसके अंदर आप कैलकुलेशन शो करिए। क्वेश्चन पेपर जैसे आपने रीड किया, उसके अंदर कोई फार्मूला है, कोई यूनिट है या कोई डेरिवेशन है, लगता है कि आप थोड़ी देर बाद उसको भूल ना जाए, मार्जिन के अंदर लिख लीजिए, यू विल फील कॉन्फिडेंट। अगर आप सप्लीमेंट्री शीट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्री शीट पे भी रोल नंबर लिखना होता है, और आपने सप्लीमेंट्री शीट 1, 2 जो भी सीरियल ऑर्डर है वो भी आपको उसके अंदर लिखना होता है। और आंसर शीट में जो मेन आंसर शीट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स काउंट करके भी लिखना होता है। टाई प्रॉपरली मेन आंसर शीट एंड सप्लीमेंट्री शीट, जो थ्रेड होता है उसको प्रॉपरली टाई कर दीजिए 2 टाइम्स। और अगर आपके किसी पेज पर ज्यादा ओवर राइटिंग हो गई है, एक कट लगा दीजिए और फिर से न्यू पेज के ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, तो इट शुड बी रीडेबल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो भी ऑप्शंस होती हैं ABCD, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा है, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है। यूज कैपिटल अल्फाबेट्स। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 चॉइसेस है, तो जो साइज है 1, 2, 3, 4 का वो थोड़ा रीडेबल होना चाहिए, वो पता ही ना चले कि 1 लिखा है या डॉट डाला हुआ है। अगर आप कोई क्वेश्चन 2 बार कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू CBSE रूल, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी के अंदर मार्किंग होगी। अगर आपने क्वेश्चन किया और बाद में आपको ठीक से याद आ गया, आपने उस कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया, तो फर्स्ट वाला जो अटेम्प्ट है उस पर अगर आप कट नहीं डालेंगे तो आपकी मार्किंग फर्स्ट वाले अटेम्प्ट की हो जाएगी। अगर आपका कोई चॉइस वाला क्वेश्चन है तो आपको कोई एक ही ऑप्शन, एक ही चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट फर्स्ट चॉइस में से कर दिया, कोई पार्ट सेकंड चॉइस में से कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कोई भी एक फर्स्ट चॉइस ही कंसिडर की जाएगी। जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसमें टू द पॉइंट आंसर दीजिए। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर लिखना है। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो 1 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, 1 मार्क के क्वेश्चन में टू द पॉइंट आंसर दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में कर देते हैं और उनका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ही टाइम को मैनेज कीजिए, कितने क्वेश्चंस हैं और कितना टाइम आपको एक क्वेश्चन के ऊपर देना है। देखिए, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको स्टेप वाइज करिए। पहले न्यूमेरिकल को रीड करिए, उसके अंदर क्या क्या गिवन है उसको लिखिए, उसके बाद फार्मूला लिखिए, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करिए, फिर कैलकुलेशन करिए और यूनिट्स का बहुत ध्यान रखेंगे। तो जब आप स्टेप्स करते हैं तो मार्किंग स्कीम में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो अगर आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी है तो, और अगर आप स्टेप वाइज हैं तो आपको स्टेप्स के कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट्स के मार्क्स कट जाते हैं। और एक बात का ध्यान करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। कोई भी क्वेश्चन आता है नहीं आता है, आप उसको ट्राई करिए, कुछ भी लिखने की कोशिश करिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, आपको लग रहा है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे तो कैसे सोल्व होगा, या डाटा इनकम्प्लीट है, लेकिन आप ट्राई करिए। तो अगर इस टाइप का कुछ होता है, इनकम्प्लीट डाटा है या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बाद में कंसिडर किया जाता है और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे रखिए कि आपके पास 5-10 मिनट बच जाए और लास्ट में आप एक रिवीजन दे दें आंसर शीट के। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो प्रॉपरली डालिए। ये स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन डाला और करना शुरू कर दिया, तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने सोल्व किया है। और अवार्ड लिस्ट में भी मार्क्स भरने होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू राइट द स्टॉर्म? यस। So before writing the storm, arm yourself with the following tools, and these tools are peaceful mind, positive mindset, very small dose of stress,
confidence and no examination fever. Then okay students, write the storm and see the result, and in the last I will say खुश रहिए और कामयाब हो जाइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.